Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be commencement of proceeding before magistrate. Section 204 to section 210 of Criminal Procedure Code we will discuss. In this particular provision, we will discuss what will be the procedure regarding the commencement of any proceeding before the criminal court. So criminal court में proceeding start कैसे होती है, क्या क्या provision रहेंगे, procedure क्या रहेगा, ये सब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो सेक्शन 204 से लेकर सेक्शन 210 आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Commencement of proceeding before magistrates. Section 204 deals with issue of process. So if in the opinion of a magistrate taking cognizance of an offence there is a sufficient ground for proceeding and the case appears to be a summons case, he shall issue his summons for the attendance of the accused, or a warrant case, he may issue a warrant, or if he thinks fit, a summons for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before such magistrate, or if he has no jurisdiction himself, some other magistrate having jurisdiction. So whenever if a magistrate receives any complaint or any police report, and if the magistrate is having an opinion that the cognizance may be taken in that particular matter, there is a particular ground on the basis of which the magistrate wants to take the cognizance of an offence, then under such a circumstances, while taking the cognizance of that offence, magistrate may issue us, if there is a summons case, he shall issue his summons for the attendance of the accused, and if there is a warrant case, the magistrate may issue a warrant, and if he thinks fit, may issue a summons for the purpose of bringing the accused and appearing the accused or the person before the court of law. तो सेक्शन 204 ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है कि मैजिस्ट्रेट जो ऑफेंस में कॉग्निजेंस ले रहा है, अगर उसको ये लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है जिसके बेस पे वो केस को आगे बढ़ा सकता है, केस में कॉग्निजेंस लेने के उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है आगे जाने का, अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, तो अगर वो समन्स केस है, जिस केस का कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है, अगर वो केस समन्स केस है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, समन्स इशू करेगा अक्यूज्ड के अटेंडेंस के लिए. अक्यूज्ड को समन्स इशू करेगा और कहेगा कि यू हैव टू रिमेन प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन सो एंड सो डेट. और अगर वारंट केस है तो मैजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकता है या समन्स भी इशू कर सकता है मैजिस्ट्रेट. क्योंकि मैजिस्ट्रेट वारंट या समन्स क्यों इशू कर रहा है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट वो अक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाना चाहता है, कोर्ट में उसको अपीयर कराना चाहता है. तो अगर मैजिस्ट्रेट को खुद कॉग्निजेंस लेता है तो ये सब चीजें करेगा. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस केस का जुरिस्डिक्शन कोई और कोर्ट को है, तो उस सिचुएशन में वो डायरेक्शन दे सकता है कि उस पर्टिकुलर कोर्ट में प्रेजेंट रहा जाए. नो समन्स और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सबसेक्शन 1 until a list of prosecution witness has been filed. So until and unless the list of prosecution witness has been filed, कोर्ट विल नॉट इशू अ समन्स और वारंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन. जब तक प्रोसिक्यूशन की विटनेस की लिस्ट ना कोर्ट में आ जाए, तब तक कोर्ट या मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड के अगेंस्ट में ना तो समन्स इशू करेगा ना तो वारंट इशू करेगा. सबसेक्शन 3 डील्स विद in a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summons or warrant issued under subsection 1 shall be accompanied by a copy of such a complaint. Suppose if the magistrate took the cognizance on the basis of complaint of complainant, then under such a circumstances, along with the copy of summons, along with the warrant, copy of complaint must be accompanied.
तो अगर मैजिस्ट्रेट किसी की प्राइवेट कंप्लेंट पे अगर कॉग्निजेंस ले रहा है और उस कंप्लेंट के बेस पे अगर समन्स या वारंट इशू कर रहा है मैजिस्ट्रेट, तो वारंट के साथ या समन्स के साथ कंप्लेंट की एक कॉपी भी अटैच करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को। When subsection 4 deals with when by any law for the time being in force any process fees or other fees are payable, no process shall be issued until the fees are paid, and if such fees are not paid within a reasonable time, the magistrate may dismiss the complaint. Suppose according to the law for the time being in force, if any process fee is required or other fees payable, so until and unless such fee is payable, magistrate will not issue a summons or warrant against the accused person, and if within the required and reasonable time if such fee is not paid, then magistrate may dismiss the complaint. अगर कोई लॉ के हिसाब से अगर कंप्लेनेंट को कंप्लेंट के साथ अगर कोई फी पे करना है या कोई अदर फीस है जो या प्रोसेस फीस है जो कंप्लेनेंट को पे करना है लॉ के हिसाब से, अगर वो कंप्लेनेंट पे नहीं करता है तो जब तक वो फी पे नहीं करेगा मैजिस्ट्रेट ना तो समन्स भेजेगा ना तो वारंट भेजेगा। और अगर रीजनेबल टाइम में अगर वो फी पे नहीं करता है कंप्लेनेंट तो उसकी कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट डिसमिस भी कर सकता है। So nothing in this section shall be deemed to affect the provision of section 87. So section 87 के जो प्रोविजन है उसको ये जो सेक्शन है किसी भी तरीके से कोई अफेक्ट नहीं करेगा। Now section 205 मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड, कि कब अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस को छूट दे सकता है पर्सनल अटेंडेंस की, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 205. Subsection 1 deals with whenever a magistrate issue a summons, he may, if he sees a reason so to do, dispense with the personal attendance of accused and permit him to appear by his pleader. Suppose if the magistrate feels that the personal attendance of accused is not required and if his pleader appear before the court of law, it will be sufficient. So under such a circumstances, magistrate may dispense the appearance of accused person. Personal attendance of accused person may be dispensed by the court of law. अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है जो समन्स इशू कर रहा है कि अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है, उसका एडवोकेट भी अगर अपीयर होगा तब भी चलेगा, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस के लिए छूट दे सकता है। But the magistrate inquiring into or trying the case may in his discretion at any stage of the proceeding direct the personal attendance of the accused and if necessary enforce such attendance in the manner herein before provided. But एक बार अगर फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने पर्सनल अटेंडेंस अक्यूज्ड की डिस्पेंस किया, छूट दिया, इसका मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत में ये कहा कोर्ट ने कि ठीक है एडवोकेट भी आ गया तो भी सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कभी भी मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है जो केस को चला रहा है मैजिस्ट्रेट, अगर उसको लगता है तो वो डायरेक्शन दे सकता है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड के। मैजिस्ट्रेट बीच में कभी भी बोल सकता है कि नहीं अभी अब अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस ही कोर्ट में लगेगी और उस हिसाब से वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में समन्स भी इशू कर सकता है, वारंट भी इशू कर सकता है उसके पर्सनल अटेंडेंस के लिए। नाउ सेक्शन 205 पे प्रोबेबल क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड मे बी डिस्पेंस्ड? सेक्शन 204, 205, 206, 207. So 205 is the correct answer. Now section 206, special summons in case of petty offences. If in the opinion of magistrate taking cognizance of a petty offence, the case may be summarily disposed of under section 260 or 261. Suppose if the magistrate feels while taking the cognizance of any offence and if the magistrate feels that this is a petty offence and this case may be tried in a summary way under section 260 or 261. जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है किसी ऑफेंस का और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पीटी ऑफेंस है और ऐसे ऑफेंस में समरी मैनर में केस चलेगा, समरी ट्रायल चल सकता है इसका, इस सिचुएशन में क्या होगा,
the magistrate shall, except where he is for reason to be recorded in writing of a contrary opinion, issue a summons to the accused requiring him either to appear in person or by pleader before the magistrate on a specified date. तो उस सिचुएशन में अगर पीटी ऑफेंस है तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करके समन्स इशू करेगा अक्यूज्ड के अगेंस्ट में और उससे ये कहेगा या तो तुम खुद या तुम्हारा एडवोकेट इस डेट में कोर्ट में प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो या तो अक्यूज्ड या उसका एडवोकेट दोनों में से कोई भी प्रेजेंट रहेगा तो प्रोविजन का कंप्लायंस हो गया, ऐसा ट्रीट होगा। और इफ ही डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट टू ट्रांसमिट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर to the magistrate the said plea in writing and the amount of fine specified in the summons. So along with the summons, suppose while issuing a summons, magistrate may mention the amount of fine in that particular summons and intimate the accused that if he want to plead guilty, then he can plead guilty and he can transmit the amount of fine to the magistrate. जब कभी भी मैजिस्ट्रेट पीटी ऑफेंस में अगर समन्स इशू करता है तो समन्स इशू करते वक्त अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस उस हिसाब से पीटी ऑफेंस है तो मैजिस्ट्रेट उसमें सिर्फ फाइन ही है तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज का फाइन है, ये समन्स में ही इंक्लूड करता है और समन्स में ही लिखता है कि अगर अक्यूज चाहता है गुनाह कबूल करे तो अगर वो गुनाह कबूल करना चाहता है तो उसने क्या करना है, सिर्फ 500 रुपए का फाइन कोर्ट में जमा करना है, कोर्ट में सेंड करना है और फाइन कोर्ट में जैसा पहुंच गया तो उसका ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस वहीं पर ही क्लोज हो जाएंगे। दैट इज अ प्रोविजन। और इफ ही डिजायर्स टू अपीयर बाय प्लीडर एंड टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज थ्रू सच प्लीडर टू अथोराइज इन राइटिंग द प्लीडर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज ऑन हिज बिहाफ एंड टू पे द फाइन थ्रू सच प्लीडर। तो मैजिस्ट्रेट यहां पर ऐसा भी अलाउ करता है कि कोई अक्यूज्ड अपने प्लीडर के थ्रू अगर गुनाह कबूल करना चाहता है तो उस सिचुएशन में अक्यूज्ड को क्या करना होगा, अक्यूज्ड को एक प्लीडर को अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा कि ही इज अथोराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ मी टू प्लीड गिल्टी एंड नाउ द एडवोकेट कैन प्लीड गिल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड ही कैन पे द फाइन, वो फाइन पे करेगा। तो एडवोकेट अगर अक्यूज्ड के तरफ से गिल्टी प्ली करना चाहता होगा, गुनाह कबूल करना चाहता होगा तो अक्यूज्ड का अथॉरिटी लेटर लगेगा और वो अथॉरिटी लेटर के चलते गुनाह कबूल करेगा उसका प्लीडर और वो फाइन पे करेगा। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन सच समन्स शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। तो जो समन्स में फाइन का जो अमाउंट है वो 1000 रुपये से ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ, सिंपल चीज कि अगर 1000 रुपये तक का फाइन है तो कोर्ट समन्स में ही वो अमाउंट डालेगा और अक्यूज को कोर्ट में आके गुनाह कबूल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो क्या करेगा, वहां से फॉर एग्जांपल 700 रुपए का फाइन अगर कोर्ट इंपोज करता है तो वो 700 रुपए का फाइन भेज देगा समन्स के साथ वापस कोर्ट में। तो कोर्ट में ये ट्रीट होगा कि उसने गुनाह कबूल किया और जितना फाइन हमने इंपोज किया उसने पे कर दिया, इतना ही सफिशिएंट है। तो 1000 रुपए तक का फाइन स्पेसिफाई कर सकता है समन्स में, कोर्ट उससे ज्यादा नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पीटी ऑफेंस मींस एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। और जो पीटी ऑफेंस की बात हो रही है सेक्शन 206 में, वो पीटी ऑफेंस का मतलब क्या है, ऐसे ऑफेंस जिसमें फाइन के प्रोविजन है, सिर्फ फाइन, सजा नहीं है, और फाइन भी कितना, एक्सीडिंग 1000 रुपीज, 1000 रुपए तक का फाइन है, ऐसे ऑफेंस पीटी ऑफेंस कहलाएंगे। The state government may by notification specially empowered any magistrate to exercise the power conferred by subsection 1 in relation to any offence which is compoundable under section 320 or any offence punishable with imprisonment for a term exceeding 3 months or with fine or with both, where the magistrate is of opinion that having regard to the facts and circumstances of the case the imposition of fine only would meet the end of justice। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के चलते क्या कर सकता है, किसी मैजिस्ट्रेट को स्पेशल पावर दे सकता है। कौन से, द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 1, स्पेशल पावर देगा कौन से, इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस विच इज कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320, ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड जो कि कंपाउंडेबल है सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में,
जो ऑफेंस कंपाउंडेबल नेचर के, जो कंप्रोमाइज हो सकता है ऐसे ऑफेंस में, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months और विथ फाइन, और ऐसे ऑफेंस जिसमें 3 महीने तक की ही सजा है या फाइन है या दोनों है। और अगर ऐसा होता है कि वेयर द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन, और मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि सिर्फ फाइन इंपोज किए, सजा नहीं, ये ऑफेंस में सिर्फ फाइन भी इंपोज किए तब भी ये जस्टिस ही कहलाएगा। अगर मैजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है तो उस सिचुएशन में ऐसे केस में भी सेक्शन 206 में स्पेशल समन्स भेजा जा सकता है, जिसमें अक्यूज्ड को गिल्टी प्लीड करने का कहा जा सकता है। दैट इज सेक्शन 206। प्रोबेबल क्वेश्चन है इस पर। स्पेशल समन्स अंडर सेक्शन 206 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इशूड by a magistrate only, by a court of session, by magistrate as well as a court of session, और by the high court. So अगर हम देखें यहाँ पर तो स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ पीटी ऑफेंस, सो बाय अ मैजिस्ट्रेट ओनली, क्योंकि पीटी ऑफेंस का मैजिस्ट्रेट ही कॉग्निजेंस लेता है, तो इस सिचुएशन में बाय अ मैजिस्ट्रेट ओनली इज अ correct answer. Another probable question is that PT offense under section 206 means offense punishable with fine not exceeding 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज। तो पीटी ऑफेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पनिशेबल ओनली विथ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। 1000 रुपये तक का फाइन जिस ऑफेंस में बताया हुआ है वो पीटी ऑफेंस के डेफिनेशन में आएंगे। 1000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 207, supply to the accused a copy of police report and other documents. So in any case where the proceeding has been instituted on a police report, the magistrate shall without delay furnish to the accused free of cost a copy of each of the following. जब कभी भी कोई मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे अगर कॉग्निजेंस ले रहा है, चार्जशीट फाइल हुई और चार्जशीट पे अगर कोई मैजिस्ट्रेट दखल ले रहा है किसी ऑफेंस की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? द मैजिस्ट्रेट शाल विदाउट डिले फर्निश द कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज्ड पर्सन। तो अक्यूज्ड को जितने डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। और कौन से डॉक्यूमेंट्स के कॉपी देना पड़ेगा? द पुलिस रिपोर्ट। जो पुलिस रिपोर्ट है चार्जशीट की कॉपी अक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। दैट विल बी द ड्यूटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154, एफआईआर जो सेक्शन 154 में रिकॉर्ड की वाली उसकी कॉपी भी देना पड़ेगा। The statement recorded under subsection 3 of section 161, तो सेक्शन 161 में जो विटनेसेस के रिकॉर्ड करे वाले स्टेटमेंट है उसकी भी कॉपी अक्यूज्ड को देना पड़ेगी। द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, अगर सेक्शन 164 में किसी मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड करा होगा अक्यूज्ड का तो उसकी कॉपी भी अक्यूज्ड को फर्निश करना पड़ेगी। एनी अदर डॉक्यूमेंट और रिलीवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 173। सो सबसेक्शन 5 सेक्शन 173 में जो डॉक्यूमेंट कोर्ट को भेजे गए हैं उन सब की कॉपी अक्यूज्ड को देना पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर perusing any such part of a statement as is referred to in clause 3rd and considering the reason given by the police officer for the request, direct that a copy of that part of the statement or of such portion thereof as the magistrate thinks proper shall be furnished to the accused person। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर पुलिस ऑफिसर कोई कंसिडर करता है या रिक्वेस्ट करता है कि ये कॉपी अक्यूज्ड को दी जाए तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट वो कॉपी अक्यूज्ड को देगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन क्लॉज 5 इज वॉल्यूमिनस, he shall instead of furnishing the accused with a copy thereof direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader in a court। Suppose if the charge sheet is very voluminous, बहुत ज्यादा बड़े डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ज्यादा पेजेस है, तो उतनी तो पेजेस अक्यूज्ड को, फॉर एग्जांपल अजमल कसाब के अगेंस्ट में जो केस हुआ था तो उस केस में थाउजेंड्स ऑफ पेज, 11,000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट थी। तो 11,000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट है तो पूरी की पूरी चार्जशीट अगर नहीं दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? अक्यूज्ड को वो इंस्पेक्ट करने की या उसको पढ़ने की कम से कम उसको चांस मिलना चाहिए। सेक्शन 207 प्रोबेबल क्वेश्चन है। कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट शैल बी सप्लाइड टू द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी फ्री ऑफ कॉस्ट। अक्यूज्ड हैज टू पे फीस फॉर दैट
कोर्ट में डिसाइड रिगार्डिंग फीस ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है, कॉपीज कैसी देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कॉपीज अक्यूज्ड को सेक्शन 207 में दी जा रही है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 208, supply of copies of statement and documents to accused in other cases triable by court of session. Suppose if any case which is exclusively triable by court of session, the magistrate shall without delay furnish to the accused free of cost a copy of each of the following. अगर कोई केस सेशन ट्राइबल है, ऐसी केस जिसको सेशन कोर्ट ही चला सकता है, उस सिचुएशन में कोर्ट, सेशन कोर्ट अक्यूज्ड को क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 और सेक्शन 202 ऑफ ऑल पर्सन एग्जामाइंड बाय द मैजिस्ट्रेट। तो जो मैजिस्ट्रेट ने एग्जामाइन किया है किसी पर्सन को सेक्शन 200 और 202 में, कंप्लेनेंट के साथ जो विटनेस को एग्जामाइन किया है कोर्ट ने, वो सारे कॉपीज अक्यूज्ड को सेशन कोर्ट को देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट अगर किसी की कंप्लेंट पे अगर कॉग्निजेंस ले रहा है, उस सिचुएशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो कंप्लेंट की कॉपी, और अगर विटनेस को एग्जामाइन किया होगा तो वो कॉपी भी कोर्ट को देना पड़ेगा अक्यूज्ड को। सेकंड वन इज द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 और 164। तो विटनेसेस के स्टेटमेंट अगर सेक्शन 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड किए वाले हैं तो वो स्टेटमेंट की कॉपी भी अक्यूज्ड को देना पड़ेगी। अगर कन्फेशन है अक्यूज्ड का सेक्शन 164 में तो वो कन्फेशन की कॉपी भी देना पड़ेगी। एनी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रोपोजेस टू रिलाई, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिस पर प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है, जिस पर प्रोसिक्यूशन का केस डिपेंड है, तो वो डॉक्यूमेंट भी अक्यूज्ड को देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस, he shall instead of furnishing the accused with a copy thereof direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader in a court। अगर वॉल्यूमिनस है वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है तो उस सिचुएशन में एक तो प्लीडर को या अक्यूज्ड को खुद को पर्सनली उन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कोर्ट। नाउ सेक्शन 209, commitment of case to court of session when offense is triable exclusively by it। When in a case instituted on a police report or otherwise the accused appear or is brought before the magistrate and it appears to the magistrate that the offense is triable exclusively by the court of session, he shall commit after complying with the provision of section 207 or 208 the case to the court of session and subject to the provision of this court relating to bail remand the accused to custody until such commitment has been made। तो क्या होगा, suppose if the magistrate taking the cognizance, if he feels and if he knows that the offense is exclusively triable by a court of session, जो मैजिस्ट्रेट ने फॉर एग्जांपल एक जेएमएफसी के बाद अगर जेएमएफसी के पास अगर चार्जशीट फाइल होती है, जैसी ही चार्जशीट फाइल हुई अक्यूज्ड कोर्ट के सामने अपीयर हुआ, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस है मर्डर का और मर्डर इज ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट, ये सेशन कोर्ट चलाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो जो कोर्ट है वो कोर्ट ही शैल कमिट द केस टू सेशन कोर्ट, लेकिन ट्रांसफर करेगा सेशन कोर्ट को केस, कमिटल प्रोसीडिंग कहते हैं उसको, लेकिन ट्रांसफर करने के पहले क्या करेगा वो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 207 208 का कंप्लायंस करेगा, मतलब चार्जशीट की कॉपी अक्यूज्ड को प्रोवाइड करेगा। या सेक्शन 208 में अगर कंप्लेंट पे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये किया गया है, कॉग्निजेंस लिया गया, उस सिचुएशन में कंप्लेंट की कॉपी वगैरह देगा, और बेल के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए उस अक्यूज्ड को कस्टडी में, मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में सौंपेगा वो कोर्ट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट रिलेटिंग टू बेल रिमांड द अक्यूज्ड टू कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। तो अगर बेल के प्रोविजन है तो बेल भी ग्रांट कर सकता है, अगर बेल के प्रोविजन नहीं है तो उस अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के कस्टडी में भेजेगा और केस को सेशन कोर्ट के पास कमिट करेगा। सेंड टू द कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट एंड आर्टिकल्स इफ एनी विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस। तो पूरी की पूरी केस ट्रांसफर करेगा सेशन कोर्ट को, जो एविडेंसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आर्टिकल्स है, वो सब ट्रांसफर करेगा। जेएमएफसी ने चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट फाइल होते बराबर जेएमएफसी ने देखा कि ये केस मैं नहीं चला सकता हूं बल्कि ये सेशन कोर्ट ट्राइबल है, तो ट्रांसफर करेगा, कमिट करेगा केस सेशन कोर्ट को। नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन।
बराबर है, दैट इज द प्रोविजन अंडर सेक्शन 209. प्रोबेबल क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी अ केस कैन बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन if the offense is exclusively triable by the court of session, if the magistrate thinks that the case ought to be tried by the court of session, both A and B, only B and not A. So the correct answer is कब ट्रांसफर करेगा, कब कमिट करेगा? If मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. अगर वो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस सिर्फ सेशन कोर्ट ही चला सकता है, उस सिचुएशन में कमिट करेगा केस. बराबर है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. Now section 210, sorry. Procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of the same offense. So section 210 ये कहता है कि सपोज एक ही ऑफेंस है और एक ही ऑफेंस में पुलिस केस भी हुआ है और कंप्लेंट भी हुई है. और फॉर एग्जांपल जिस मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट पे केस का कॉग्निजेंस लिया है, तो कंप्लेंट जब मैजिस्ट्रेट के सामने होती है तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी के ऑर्डर देता है या ट्रायल चलता है. लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल करते वक्त अगर ऐसा लगता है कि सेम मैटर में पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? जो कंप्लेंट पे उसने कॉग्निजेंस लिया था उस प्रोसीडिंग को स्टे करेगा, उसको वहीं पर रोक देगा, है ना. और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है सेम ऑफेंस में, उनका रिकॉर्ड कॉल करेगा, है ना. Suppose if a report is made by the investigating officer under section 173 and on such report cognizance of an offense is taken by the magistrate against any person who is an accused in the complaint case, the magistrate shall inquire into and try together the complaint case and the case arising out of the police report as if both the cases were instituted on a police report. तो दोनों केस अगर साइमल्टेनियस चलते हैं तो सिचुएशन में यहां पर सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि इफ अ रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 173, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चार्जशीट फाइल करता है एंड ऑन सच रिपोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस इज टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट, और वो रिपोर्ट पे अगर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एन अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट केस. समझ रहे हो कि पुलिस ने रिपोर्ट फाइल किया, चार्जशीट फाइल किया, उस बेस पे मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया और ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में, ऐसे अक्यूज के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लिया कि जो कंप्लेंट केस में भी अक्यूज्ड है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? द मैजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर इनटू और ट्राई टुगेदर द कंप्लेंट केस एंड द केस अराइजिंग आउट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट. तो दोनों केस जो पुलिस रिपोर्ट पे अराइज हुई, चार्जशीट पे जो उसने कॉग्निजेंस लिया, और कंप्लेंट केस, दोनों का अक्यूज्ड एक ही है, तो दोनों को एज अ पुलिस रिपोर्ट पे ही इंस्टीट्यूट हुए ये ट्रीट करके वो कॉग्निजेंस लेगा मैजिस्ट्रेट. इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एन अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट केस और इफ the magistrate does not take cognizance of an offense on the police report, he shall proceed with the inquiry or trial which was stayed by him in accordance with the provision of this code. तो वो अगर कंप्लेंट में जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी कर रहा था मैजिस्ट्रेट और जो पुलिस रिपोर्ट आई, अगर पुलिस रिपोर्ट का अक्यूज्ड अलग है और कंप्लेंट का अलग है, तो सिचुएशन में जो कंप्लेंट उसने कंप्लेंट की जो इंक्वायरी चल रही थी उसको जो स्टे किया था, उसने उसको रोका था, उसको कंटिन्यू का ऑर्डर देगा कोर्ट. तो यहां पर ऑफेंस एक ही है लेकिन उससे रिलेटेड कंप्लेंट भी हुई और फॉर एग्जांपल पुलिस रिपोर्ट पे भी चार्जशीट भी फाइल हो रही है, तो उस सिचुएशन में प्रोविजन क्या होगा? सेक्शन 210 हमने डिस्कस किया. प्रोबेबल क्वेश्चन है. सेक्शन 210 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर स्टे ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग इन कंप्लेंट केस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी. तो स्टे ऑफ पुलिस स्टे ऑफ कंप्लेंट केस है, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन इज दैट सेक्शन 210 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इन्वोक्ड where there is a complaint case and police is also investigating the matter, when there is a complaint case but no police investigation is in progress, when there is a complaint case and police has already completed the investigation, all of the above. तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन. मतलब कंप्लेंट केस भी है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सेम मैटर में, तो सेक्शन 210 अप्लीकेबल होगा. सो दीज आर द पर्टिकुलर provision relating to commencement of proceeding before the magistrate. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.